Very good evening, everybody. So this topic today we are going to discuss is not a technical topic. We have a lot of technical discussions. We have a lot of system discussions. Today we are diverting our topic to some other thing, that is skill development. Hope it will help you in your future time and definitely give you some better inputs. So let us start with first point, that is recognize himself. We all know we have a power, we have abilities, and I think this particular post breakdown or post break has helped us in understanding ourselves. It is given a good opportunity to us to think, to sit and rethink about ourselves, what we have decided in our future, where are we, and how we have to go ahead in our future. Before that, I would like to say that every individual has an ability to grow. Every individual has something, some gifted ability by the God, and that we have to understand and we have to develop that particular skill and we have to work accordingly. So I can say everybody can say that I have a power to make the change the world. Everybody has the power to make a change. Regarding recognition, I always believe that we always recognize our teammates, we always recognize some good work by the others, but we never recognize ourselves. We as an individual doing a lot of good things, we as an individual get a lot of success, but we are not going to cherish it, not going to celebrate it on our own. For example, anybody has have a clap for himself. He has done a good job in office, or he has done good work in some project, or he got good marks, or he got some good success, he got promotion, he got salary rise. Anybody has chat for himself in his life. I think this is very important because any recognition gives you a motivation, and motivation for himself is also required. If you are doing a good job, other people will recognize you, but as a human, as a yourself own, you have to recognize yourself also. So recognition is very important. Ability, as I told you, everybody has ability to do better. God has not God has given that kind of ability to everybody. Everyone is unique in his own way, but you have to utilize that ability in a good way. We'll going to see all these things in the future slides as well. One has to make sure that you have to believe in yourself that you can make wonders. You can make wonders and you have a power to change the world. So you have to believe in yourself. That is very important. That self-confidence will definitely help you in growing your career. We all know these words: SWOT analysis, SWOT. S for strength, W for weaknesses, O for opportunities, and T for threats. I think this is the right time, in this post break, we should sit together, review ourselves, review our SWOT analysis. What are my strengths? What are my weaknesses? What are my opportunity if I improve my weaknesses? And what are the threats if I doesn't improve on my weaknesses? So this is the right time. You can sit down, collect all the things in your mind. You find out the way you can improve your weaknesses. You can improve your strength further, and this will help you. I would like to give one example. You can go around 10 years back. Indian cricket team had a very poor performance in abroad. If you got to the last 10 years journey of Indian cricket team, they have been performing very badly in foreign countries. They are not, their winning percentage was very poor. And if you see last 2 or maybe 2 years, the Indian cricket team performance in abroad as well as in India has been improved a lot. If you go back and see the SWOT analysis of Indian cricket team, what will you say? 10 years back, our strength was our batting. When there was Rahul Dravid, Sachin Tendulkar, Virendra Sehwag, VVS Lakshman, maybe Saurabh Ganguly. So our strength was batting. It was one of the best batting in the universe. But at the same time,
we have a very bad, weak line of our fast bowling. There was almost anybody who's really a good fast bowler, and those who are there are on at the end of their career, at not at their best. So that was the weakness. You can go to last 2 years, you can see that weakness has been drastically changed into strength. If you go to last couple of years, you can see every series we have a different team of fast bowlers. There are a number of fast bowlers coming up, maybe 7 or 8 fast bowlers at the moment who are leading in the front, and they are doing wonders for our team. And that is why we can go in the foreign countries, in the abroad, and winning the test matches, winning the one days, winning the T20s, and our performance, our percentage of winning has been improved a lot because of the weakness has been converted into strength. So I think this example will guide you that you have to understand your weakness, you have to work on that, and you have to convert your weakness into strength. Your performance will definitely improve. That helps you to get more and more opportunity for the growth. If you doesn't do it, then definitely it will be a threat. Threat means it is a fear of losing the opportunity, fear of losing or going backward in the growth competition. Even if you try to copy me, you cannot. You keep a SWOT analysis and execute accordingly. This is what we are many times we see somebody, we impress with him and we try to copy him, but doesn't copy, because you are you. Everybody has his own unique identification, own unique identity. So you have to grow on your own. What you need, you have to do your SWOT analysis, you have to understand your weaknesses, you have to understand your strength, you have to go according to your strength and improve on your weaknesses. That is what is required. Regarding overcome of the weakness, many times this weakness helps you in your life. There's one example, one story is there, one Japanese boy story. I would just like to tell you that story. In Japan there was a little kid and he wanted to be a good player in want to be a good player, and one day he was just passing through a road and he got to a bad accident and his left hand has been broken. उसका जो दायां हाथ था वो पूरी तरह से निकामी हो गया, उसे काटना पड़ा. But still he want to be a good player of karate, and he go back and he tell his father that I want to be a good karate player. Father say, how it is possible? You don't have a left hand, you have just one hand. How are you going to play karate? It is not possible. But still that boy was very eager, और उसने पिताजी को बोला मुझे किसी भी हाल में कराटे खेलना है, मेरा ड्रीम है ये. So the father unfortunately take him to the coach, to the school coach, and school coach also says same thing. It is not possible. With one hand you cannot play karate and you cannot improve. लेकिन फिर भी वो बच्चा उसी चीज़ पे आधा रहा है कि मुझे किसी भी हाल में कराटे खेलना ही है. Then suddenly okay, karate school coach has accepted it. उसने उसे अपने स्कूल में दाखला दे दिया and he joined it. 1 week हो गया, 1 week में उसे पहले शुरू में कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने को बोला, and then he got one particular thing in कराटे. उसको एक कराटे का एक स्पेसिफिक डाव जो था वो उसको सिखाया गया. जहाँ दूसरे लड़कों को वो रेगुलरली कुछ नया सिखाते गए. वो जो एक डाव उसने सीखा था वो कोच उसे बोलता था कि रोज जाके उसको प्रैक्टिस करे. 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, वही एक ही डाव को प्रैक्टिस कर रहा था. लेकिन वो कोच दूसरे बच्चों को अलग अलग नए दाव पेच सिखा रहा था. तो एक बच्चे ने पूछा टीचर से कि आप मुझे एक ही दाव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन बाकी के बच्चों को तो अलग अलग दाव पेच नए कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, मैं उनसे कैसे कॉम्पीट करूँगा? वो उनको तो बहुत कुछ आने लगा है, मुझे तो सिर्फ एक ही दाव आता है. वो टीचर बोलते हैं यू हैव टू बिलीव मी. अगर यहाँ पर आए हो तो मुझे बिलीव करना पड़ेगा, जो भी मैं कर रहा हूँ आप तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ. सो बॉय से ओके, नो प्रॉब्लम, लेट अस कंटिन्यू. ऐसे करते करते साल बीत गया, और साल के बाद जब उनका सालाना कंपटीशन आ गया तो वो टाइम पे कंपटीशन शुरू हो गया. सब बच्चे ने बोला एक हाथ वाला ये लड़का क्या कॉम्पीट करेगा, ये तो हारने वाला है, पहले राउंड में बाहर पड़ेगा.
कंपटीशन शुरू हो गया, उसने पहली मैच जीती, दूसरी मैच जीती, तीसरी मैच जीती, ऐसे करते करते वो फाइनल तक पहुंच गया। और फाइनल में उसका मुकाबला सबसे तगड़े लड़के के साथ था। जो तगड़ा लड़का था वो तो पूरे दांव पे डालता था, वो पूरा एक्सपर्ट था और बहुत ही ताकतवर था, उसका एक्सपर्ट ही बहुत ज़्यादा था। तो सबने सोच लिया कि शायद ये लड़का अभी फाइनल में तो हार ही जाएगा। फाइनल चालू हो गया, कुछ देर के बाद वो जो तगड़ा लड़का था उसने इसको एक दांव में फंसा दिया और ये जब गिरते गिरते बच गया। और जैसे उसके ध्यान में आया कि वो तगड़ा लड़का थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, तो उसने अपना वो रेगुलर पुराना वाला जो एक दांव उसने सीखा था वो डाल दिया और उस लड़के को नीचे गिराकर मैच जीत लिया। सब अचंभित में रह गए, एक हाथ वाला ये लड़का कैसे जीत गया। ये लड़का भी थोड़ा अचंभित हो गया कि मैं कैसे जीत गया, ये बाकी लड़के ने तो साल भर पूरी प्रैक्टिस की, इनको तो पूरा सब गुरुवर ने सिखाया था, मुझे तो सिर्फ एक ही दांव सिखाया था, फिर भी मैं कैसे जीत गया। तो जाके वो टीचर को पूछता है कि टीचर मैं कैसे जीत गया, मतलब क्या हो गया कि बाकी सब लड़के मुझसे हार गए, ऐसी क्या विशेषता मुझ में है। तो वो टीचर बोले कि देखो दो चीज़ें थी, सबसे पहले तो मैंने तुमको एक ही दांव सिखाया था और पूरे साल भर में तुम एक ही दांव पेच को एक कंटिन्यूसली फॉलो करते आ रहे थे, उसमें तुम पूरे एक्सपर्ट हो गए थे। तो वो दांव में तो तुम चूक नहीं सकते थे कि बाकी लोगों ने ये दांव जितनी बार प्रैक्टिस किया है उससे कई ज़्यादा बार आपने किया था, तो उसमें आप एक्सपर्ट बन गए थे, तो उसमें उस दांव में आपको हराने का सवाल नहीं था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको दांव पेच सिखाया था, वो दांव पेच को फंसाने के लिए या दांव पेच को निर्भर करने के लिए जो दांव सामने वालों को डालना है, वो दांव में उसे आपका जो दायां हाथ है उसको पकड़ के घुमाना है, और आपके पास तो दायां हाथ ही नहीं है। तो जब भी आप वो दांव लगाते थे, सामने वाला आपके दाएं हाथ के ऊपर हाथ डालता था, लेकिन उसके समझ में आता है कि आपका दायां हाथ ही नहीं, तो वो फंस जाता था और इसलिए आप जीत गए। तो उसका जो वीकनेस था, उसका दायां हाथ न होना, वो उसको स्ट्रेंथ में तब्दील हो गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अपना वीकनेस अपने स्ट्रेंथ में तब्दील हो जाता है। जैसे मैं बात कर रहा था कि आप ये सही टाइम है कि आप बैठ के आपके बारे में सोचें। जब आपने फाउंड्रीज में शुरू किया था, अपना करियर शुरू किया था, जब भी आप फाउंड्री में आए थे या किसी भी बिजनेस में आए थे या किसी भी नौकरी आपने ज्वाइन की थी, जब आपका करियर शुरू हुआ था, तो आपके दिमाग में कुछ तो गोल, कुछ तो मिशन, कुछ तो विजन लिया रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये सही टाइम है उसके बारे में सोचने का कि मैंने क्या विजन लिया था, मेरा मिशन क्या था, या फिर मैं क्या बनना चाहता था जब मैं इस मेरे करियर के शुरुआत में आया था। अब जबकि हम और 10-15 दिन घर में बैठने वाले, तो लेट अस थिंक ऑन दैट कि व्हाट वाज माय मिशन, वेयर आई वांट टू गो, और अब मैं कहाँ पर हूँ, और मैं जहाँ पर हूँ क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, वेदर आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। अगर वेदर आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन, सो हाउ आई कैन प्लान फर्दर। अगर मैं नहीं भटक गया हूँ, मेरे रास्ते से कहीं और चला गया हूँ, तो हाउ आई कैन कम बैक टू माई विजन, तो मैं अपने रास्ते पे वापस कैसे आऊँ, उसमें इम्प्रूव कैसे करूँ। तो ये सब सोचना इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात हमेशा ये रहती है, जब तक आपका कोई मिशन नहीं रहता है, आपका कोई विजन नहीं रहता है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव अ पाथ। जैसे कि हमें समझो जाना है कहीं पे, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे पुणे जाना है या बेंगलोर जाना है। अगर पुणे जाना है तो अलग रास्ता है, बेंगलोर जाना है तो अलग रास्ता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर वी हैव टू गो, जहाँ पर जाना है वहाँ का डिस्टेंस क्या है, वहाँ कितने बजे पहुँचना है, ये सारी चीज़ें अगर मुझे पता चलेगी तो आई कैन प्लान माई जर्नी। जब तक वो मुझे पता नहीं चलेगा, आई कैन नॉट प्लान माई जर्नी। अगर मुझे कल जाना है या परसों जाना है या अभी जाना है, तो उसके हिसाब से मैं अपने जर्नी को, अपने व्हीकल को, सब चीज़ों को प्लान कर सकता हूँ। अगर जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं उसको प्लान नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है डेस्टिनेशन, जहाँ पर हम हैं अभी, दैट इज़ अ डेस्टिनेशन, दैट इज़ नॉट आवर टारगेट। हम जहाँ पर पहुँचे एक डेस्टिनेशन है, हमें यहाँ से पुणे जाना है, तो अभी हम सातारा पहुँच चुके हैं, सो इट इज़ अ डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो इट इज़ जस्ट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ नॉट आवर एंड ऑफ द जर्नी। तो यहाँ से जर्नी और आगे भी हमें जाना है, बहुत सारा काम हमें करना है। तो उस काम को करने के लिए हमें अभी जो क्षमता है, वो क्षमता को हमें बढ़ाना है, सही तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है, सही तरीके से अपने एनर्जी को लगाना है, एंड दैट इज़ वेयर मिशन, विजन, गोल एंड डेस्टिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। एक और चीज़ है, कई लोग बोलेंगे कि मेरा ये विजन था, मेरा ये गोल था, लेकिन मुझे रिसोर्सेस ही नहीं मिले, ऐसा भी कोई लोग बोल सकते हैं। लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि अपने बाजू में बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में सीख रहे हो, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में सीख रहा हूँ, जहाँ पर अच्छी लेबोरेटरी है, जहाँ पर अच्छा लाइब्रेरी है, वहाँ पर बहुत सारी बुक्स भी है, लेकिन आपको अगर पढ़ने का कोई शौक नहीं है, आपको अगर कहीं आगे जाने का शौक नहीं है, तो शायद बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में सीख के भी या अपने यूनिवर्सिटी में अच्छी से अच्छी लाइब्रेरी होने के बावजूद भी आप उन रिसोर्सेज का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो जब तक आप में मिशन नहीं है और आगे जाने की इच्छा नहीं है, तब तक शायद रिसोर्सेज भी आपको मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ से अभी हम जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ पीडीसी साइकिल। हमने कुछ तो प्लान किया था अपने करियर में, उस प्लान के हिसाब से हम आगे जा रहे हैं। प्लान देन डू, हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक की है, हम यहाँ तक आए हैं, दैट इज डू। अभी हम जो कर रहे हो दैट इज चेक। अब एक जगह पे बैठ के जो हम सोच रहे हैं कि हमने अभी तक क्या किया, क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, दैट इज दी चेक। और इसके आगे हमें जो भी करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट इज एक्ट। वी हैव टू अंडरस्टैंड वेदर वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। अगर हम नहीं जा रहे हैं तो हमें उसमें सुधार करना पड़ेगा, हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। और ये जो पीडीसी साइकिल है, ये ना सिर्फ इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, हमारे लाइफ में भी इस्तेमाल होता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हम वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग आवर से, वी आर रिव्यूइंग आवर डेस्टिनेशन, रिव्यूइंग आवर जर्नी। और जब भी हम इसके रिव्यू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वी आर इन राइट डायरेक्शन और नॉट। अगर राइट डायरेक्शन में है तो वी हैव टू कंटिन्यू इट, अगर राइट डायरेक्शन में नहीं है तो वी हैव टू रीथिंक ऑन आवर फर्दर जर्नी। हमें कुछ एक्शन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। One example I always give, that is you may have eat pizza। आप लोगों ने पिज़्ज़ा तो बहुत लोगों ने खाया होगा, लेकिन कभी किसी ने पिज़्ज़ा बेस खाया है? What is पिज़्ज़ा बेस? पिज़्ज़ा बेस इज नथिंग बट ओनली बेस, जिसके ऊपर पिज़्ज़ा तैयार होता है। तो पिज़्ज़ा बेस तो हम खाते नहीं है, सिर्फ हम पिज़्ज़ा खाते हैं। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पिज़्ज़ा बेस एंड पिज़्ज़ा? द डिफरेंस इज दी टॉपिंग्स। टॉपिंग्स में क्या क्या है? टॉपिंग्स में कुछ चीज़ है, बटर है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अलग अलग तरह के नट्स है। इन सारी चीज़ों को एक करके एक अट्रैक्टिव कवर जो पिज़्ज़ा बेस के ऊपर रखा जाता है और उसे हम बाद में पिज़्ज़ा कहते हैं। तो दैट टॉपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मेक्स दैट पिज़्ज़ा बेस अट्रैक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी इंडस्ट्री में हैं, इंडस्ट्री में हमें कुछ टेक्निकल नॉलेज है, वी आर देयर इन इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल नॉलेज, एंड दैट टेक्निकल नॉलेज इज नथिंग बट पिज़्ज़ा बेस। लेकिन सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया कि पिज़्ज़ा बेस इज नॉट हैव एन अट्रैक्शन, पिज़्ज़ा बेस का कोई अट्रैक्शन नहीं है। पिज़्ज़ा बेस अकेले हम खा नहीं सकते हैं, वी नीड अ पिज़्ज़ा। सो व्हाट इज नीड is we have to improve our technical knowledge along with some skill development, along with some personality development, along with some additional skills which help us in improving our technical knowledge, which helps us in growing our skills, which help us in growing our further capacities. So that is why this pizza base has to be converted into pizza. तो इसमें एक सबसे बड़ी बात, एक स्टोरी है, वो भी आपको मैं सुनाता हूँ। A story of two friends, दो लड़के थे, ए और बी दोनों लड़के स्कूल एक दूसरे के पास में रहते थे। स्कूल में एक साथ गए, कॉलेज में एक साथ गए, वहाँ से दोनों ने एक ही कॉलेज से MBA की डिग्री हासिल की। और MBA की डिग्री हासिल करने के बाद दोनों भी लड़के अपने कॉलेज के कैंपस इंटरव्यू में से सिलेक्ट हो गए एक मार्केटिंग कंपनी के लिए, और एक ही कंपनी ने दोनों को एक साथ हायर कर लिया। सो टाइम गोज, 1 साल 2 साल का टाइम जाने के बाद जब जो बी लड़का था उसे ऐसा लगा कि ए लड़के को तो प्रमोशन मिल गया, उसका इंक्रीमेंट हो गया, उसकी तरक्की हो रही है, लेकिन वो जो बी लड़का था वो बी लड़का वही का वही था। तो 2 साल के बाद वो थोड़ा निराश हो गया और वो अपने बॉस के पास गया और बॉस को बोला कि ये जो मेरे साथ में ए भी आया था, दोनों हम एक साथ ही आए हैं, एक साथ ही पढ़े हुए हैं, हम एक जैसे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ए को आप ज़्यादा कुछ इम्प्रूव कर रहे हो, उसे तरक्की दे रहे हो, उसे इंक्रीमेंट दे रहे हो, उसे अलग अलग जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं, और वो जिम्मेदारियाँ मुझे आप नहीं दे रहे, वो उतना इम्पोर्टेंस मुझे आप नहीं दे रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बॉस के ध्यान में आया कि उसका प्रॉब्लम क्या है। तो उसने बी को बोला कि मैं आपको एक टास्क देता हूँ और वो टास्क आप मुझे पूरा करके दीजिए। तो टास्क देता है बी को, वो बोलता है कि सिटी में जाओ और सिटी में जो वाटरमेलन है
तो वाटरमेलन बेचने वाले कितने आदमी हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेना। तो बी जाता है, मार्केट में जाता है, घूमता है और वापस आके बॉस को बताता है कि इस शहर में वाटरमेलन बेचने वाला सिर्फ एक ही आदमी है जिसके पास वाटरमेलन मिलता है और वो उसका नाम झेड़ है। तो बॉस बोलता है उसका रेट क्या है और उसके पास स्टॉक कितना है, कुछ पता है आपको? वो बोला नहीं, मैंने सिर्फ उसका नाम और ये पता किया है, चाहिए तो मैं जाके वापस बताता हूँ। तो वापस गया, वापस जाने के बाद उसने उसका रेट लाया। वो बोला, वापस जाने के बाद उसने बॉस को बताया कि उसका रेट 16 रुपये पर केजी है और उसके पास अभी 200 किलो के करीब स्टॉक है। तो बॉस ने बोला ठीक है, अभी एक टास्क मैं ए को देता हूँ, तुम रुको, मैं ए को बुला रहा हूँ और एक टास्क हम ए को भी देंगे। तो वो कैसे काम करता है आप तुम्हें पता चलेगा। तो वो ए को बुलाता है, वही बात उससे बोलता है कि इस शहर में वाटरमेलन बेचने वाले की डिटेल्स मुझे चाहिए। तो ये जाता है और ये जाके फिर दूसरे दिन सुबह उसको रिपोर्टिंग करता है। और दूसरे दिन जैसे ए आता है तो बॉस बी को भी बुलाता है और ए को बोलता है कि बताइए आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लाई। तो ये बोलता है इस शहर में वाटरमेलन बेचने वाला एक आदमी है, उसका नाम झेड़ है, उसका रेट 16 रुपये पर केजी है, उसके पास अभी 220 किलो का स्टॉक है, उसके पास कटिंग मशीन है और वो कटिंग मशीन से हमें वाटरमेलन कट करके देने को राजी है। इसके साथ में ही वो और भी स्टॉक चाहे तो हमारे लिए बढ़ा सकता है। अगर हम ये बिज़नेस उसके साथ में डील करेंगे तो ये आने वाले साल में हमारा बिज़नेस 10% से बढ़ जाएगा और हमारा प्रॉफिट पिछले साल के बजट के गुना पे 5% बढ़ जाएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक एक्सेल शीट में बना के रखी है, अगर आप चाहें तो आपको मेल कर देता हूँ। तो ये समझने के बाद बॉस ने बी को पूछा कि कुछ समझ गए आप? तो बी के ध्यान में आया कि मैंने सिर्फ जो बताया उतना ही किया, लेकिन ए ने क्या किया, पूरी इन्फॉर्मेशन जमा की, पूरी चीज़ें एक साथ की और उसको एक साथ में एक्यूमुलेट करके उसे एनालिसिस करके बॉस के सामने रखा। तो ये जो फ़र्क है, इस फ़र्क को ही हम बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम कई बार जो बताया है उतना ही करते हैं, लेकिन कई बार अगर हमें इंडस्ट्री में कामयाब होना है, हमें इंडस्ट्री में कुछ आगे बढ़ना है, हमें इंडस्ट्री में हमें अपना खुद का स्थान बनाना है, तो चाहे ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या इस तरह के स्किल डेवलपमेंट हमें बहुत मदद करेंगे। तो इसीलिए ये हमें उस मकाम की तरफ लेके जाए जहाँ से हम पिज़्ज़ा बेस से पिज़्ज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये स्टोरी शायद आपको अच्छी लगी होगी। स्टोरी से एक बात तो हमें पता चलती है कि हमें किसी भी तरह से अगर बढ़ना है, आगे कुछ करना है, अगर हमें ए बनना है तो हमें इस तरह की स्किल डेवलपमेंट, इस तरह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को हमें अपने अंदर ले लेना चाहिए। अगर हमें बी बन के रहना है तो फिर शायद हम जैसे है वैसे ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा एटीट्यूड बदलना चाहिए। दैट इज द एटीट्यूड, अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ए और बी के बीच में क्या फ़र्क था? दोनों के सोचने के तरीके में फ़र्क था, दोनों के सोचने के ढंग में फ़र्क था, दोनों के एटीट्यूड में फ़र्क था। और शायद यही एटीट्यूड हमें छोटी सी चीज़ है, लेकिन उससे जो पड़ने वाला फ़र्क है वो बहुत बड़ा है। अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। नेगेटिव एटीट्यूड। व्हाट इज नेगेटिव एटीट्यूड? Negative attitude is like a punctured tire. You cannot reach anywhere until you change it. Negative attitude is like a punctured tire. You cannot reach anywhere until you change it. So always think positive. अगर हम negative thinking करेंगे तो क्या होगा? We will not able to reach our destination. यहाँ पर भी एक मार्केटिंग की स्टोरी है। एक शूज़ कंपनी थी और वो अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहती थी। दे वांट टू एक्सपांड देयर बिजनेस एंड दे वांट टू एक्सपांड इट ग्लोबली एक्सपांड करने के लिए उन्होंने एक मार्केटिंग टीम की मीटिंग बुलाई थी। और उस मीटिंग में उन्होंने बताया कि हमें अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपने बिजनेस को देश विदेश में लेके जाना है। तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी टेकिंग करना है और कुछ हमें डेटा गैदर करना है। इसलिए हम 2 लड़कों को चूज़ करेंगे और इन 2 लड़कों को हम एक विदेश में भेजेंगे आप स्टडी करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, कुछ एनालिसिस करने के लिए, एक रिपोर्ट बनाने के लिए, जिसके आधार पर हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो 2 लड़के थे, एक का नाम अगेन ए और बी है। तो दोनों के दिमाग में क्या क्या था, दिस इज अ डिफरेंस। तो एक क्या सोच रहा था
कि जब उसे बोला गया कि आपको भेज रहे हैं हम अफ्रीका में, ताकि हम जाके वहाँ पर स्टडी करें और हमें बताए कि क्या हम अपना बिजनेस वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक ही दिमाग में था कि यस, दिस वॉज गुड अपॉर्चुनिटी, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, और अगर हम वहाँ पर काम करना चालू करेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है, और इतने सारे मार्केटिंग के लोगों में से मुझे चुना, ये मेरा भाग्य है। एक अच्छी बात है कि मुझे इतने सारे लोगों में से मेरे को चुना, इसका मतलब कंपनी को या मैनेजर को या टॉप मैनेजमेंट को मेरे ऊपर विश्वास है। सो ही फील प्राउड। दूसरी जगह जो बी था, ही फील अरे क्या यार, जब भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ही पकड़ के लेके आते हैं, मुझे ही इस तरह चीज़ों में फंसा देते हैं, इनको और कोई देश नहीं मिला, दक्षिण अफ्रीका भेज रहे हैं मुझे, कोई अच्छा यूरोप में भेज देते हैं। तो इस निगेटिविटी के ऊपर दोनों बी था और पॉजिटिविटी के ऊपर ए था। ये दोनों कुछ दिनों के बाद इन दोनों को भेज दिया गया, वो दक्षिण अफ्रीका गए। अफ्रीका में उन्होंने काफ़ी स्टडी की, और स्टडी करने के बाद उनको मैनेजमेंट ने बोला कि आप अपना रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। तो बी का रिपोर्ट था, बी ने लिखा था, इट वॉज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। जो मेरा ये प्रवास था, मेरा ये जर्नी था अफ्रीका में आने का, ये पूरा वेस्ट था, पैसे का भी और टाइम का भी। यहाँ पर कोई भी आदमी चप्पल भी नहीं पहनता है, यहाँ कोई भी आदमी चप्पल भी नहीं पहनता है, तो हमारे बूट का यहाँ पर, शूज़ का यहाँ पर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले चप्पल भी कोई नहीं पहनता है, तो हमारे बूट कौन खरीदेगा। तो ये पूरी तरह फ्लॉप आइडिया है, इसे आप छोड़ दो। दैट वॉज दी रिपोर्ट गिवन बाय बी। रिपोर्ट ए ने भेजी थी, ए ने भेजी, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, इट वॉज अ वेरी नाइस टाइम टू बी हियर। A good thing here is nobody is wearing चप्पल्स, nobody is wearing shoes। तो अगर कोई शूज़ नहीं पहन रहा है तो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब 100% मार्केट शेयर हियर। अगर हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास एक मौका रहेगा कि 100% मार्केट शेयर हम ग्रैब कर सकते हैं। वी डोंट हैव एनी कॉम्पिटिशन हियर, सो वी कैन फ्लो लाइक एनीथिंग, वी कैन मेक अ बिजनेस लाइक एनीथिंग। सो वी हैव टू कम हियर एज अर्ली एज पॉसिबल एंड डू द बिजनेस, स्टार्ट द बिजनेस। ये दोनों का रिपोर्ट आने के बाद जाहिर है मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया होगा। मैनेजमेंट ने ए को इस प्रोजेक्ट का मैनेजर बना दिया, उसको प्रमोशन दे दिया, उसको आगे इस प्रोजेक्ट के लिए प्रमोट किया, उसको इस प्रोजेक्ट में से काफ़ी फ़ायदा हुआ, उसकी खुद की ग्रोथ हो गई, कंपनी की भी ग्रोथ हो गई। बी जैसे था वैसे उस जगह पे रह गया, बिकॉज ही थॉट निगेटिवली। दैट इज व्हाट निगेटिव एटीट्यूड लुक्स लाइक। इट इज़ लाइक ए पंक्चर टायर वेयर यू कैन नॉट रीच एनीवेयर until you change it। उसको चेंज जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ पॉजिटिव एटीट्यूड विल लीड टू अ पॉजिटिव आउटकम। यहाँ पर भी आपने देखा एक का पॉजिटिव एटीट्यूड था, सो ही हैज़ अ वेरी गुड रिजल्ट, ही रीच अ डेस्टिनेशन वेयर ही वॉज एक्सपेक्टेड टू गो। सो दैट पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज हेल्प यू टू हैव वेरी पॉजिटिव आउटकम। हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में हमने देखा। दो और स्टोरीज है, एक है एक स्वामी जी थे, एंड दैट स्वामी जी वाज ट्रैवलिंग अलोंग द वर्ल्ड फॉर गिविंग सम गुड थॉट्स टू द कम्युनिटी। और एक बार घूमते घूमते वो न्यूयॉर्क में आ गए। न्यूयॉर्क में आने के बाद एक होटल में उन्होंने रूम बुक किया था, और जैसे वो होटल के रूम में उन्होंने एंटर किया तो उनके साथ में उनका एक सेवक था, और वो सेवक उनको बोलता है कि स्वामी जी रूम बहुत छोटा है। तो स्वामी जी बोलते हैं हाँ रूम तो बहुत छोटा है, लेकिन अच्छी बात है, बिजली का बचत हो जाएगी, बिजली कम लगेगी, इट्स अ गुड थिंग, विल सेव द पावर। 8 दिन के बाद वो न्यूयॉर्क से लेकर शिकागो चले गए। शिकागो में वहीं पर उन्होंने और एक होटल में रूम बुक किया था। वैसे ही वहाँ पर भी वो रूम में जब भी एंटर हुए तो उनके साथ में जो सेवक था फिर वो बात बोल पड़ा, स्वामी जी दिस रूम इज़ वेरी बिग रूम। तो स्वामी जी बोला हाँ ये रूम बहुत बड़ा है, लेकिन अच्छा है, बहुत सारे लोग बैठ सकेंगे, बहुत सारे लोग मेरी बातों का लाभ उठा सकेंगे, और मैं बहुत सारे लोगों से के साथ में बात कर सकूंगा। सो लुक एट द थिंग्स। पहले जगह जहाँ पे रूम छोटा था, ही वॉज थिंकिंग कि मेरा पावर सेव हो जाएगा। ही वॉज नॉट थिंकिंग कि रूम छोटा है मतलब इट्स नॉट नेगेटिविटी, इट्स अ पॉजिटिविटी दैट वी कैन सेव द पावर। और जहाँ पे रूम बड़ा है, ही विल नॉट थॉट दैट पावर विल लॉस्ट, ही थिंक दैट मेनी पीपल विल एबल टू कम अक्रॉस माई थॉट्स, I can able to interact with many peoples, and that is how the positive energy floats.
तो पॉजिटिविटी यहीं पे आती है। उन्हीं स्वामी जी की और एक कहानी है, वो जहाँ ये पूरा जो भ्रमण करते थे, तो ही वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी नाइस कार। तो उस कार के एक साल में 4 एक्सीडेंट हो गए, और जब 5वां एक्सीडेंट हो गया इस कार का, तो एक उनके शिष्य उनके पास आए, उनको स्वामी जी को बताया कि स्वामी जी इस साल में इस कार के 5 एक्सीडेंट हो गए, तो क्यों ना हम इस कार को बेच देते। ये कार कुछ अच्छी नहीं है, अपने लिए कुछ शुभ शकुन नहीं है कार का। अगर 5 एक्सीडेंट साल में होते हैं तो इट इज़ नॉट गुड, सो लेट अस सेल इट आउट। तो स्वामी जी बोले क्यों? बोले 5 एक्सीडेंट हो गए स्वामी जी। तो बोले हाँ, लेकिन 5 एक्सीडेंट में कोई भी मरा नहीं है। 5 एक्सीडेंट हो गए, यहाँ पर तो एक एक्सीडेंट में 5 लोग मरने की आशंका रहती है। या तो 5 एक्सीडेंट होने के बाद भी अगर कोई मरा नहीं है तो ये गाड़ी तो मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि 5 एक्सीडेंट के बाद भी सब अच्छे हैं, किसी को कुछ हुआ नहीं है। सो यू कैन सी द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। ही इज नॉट टेकन इन अ नेगेटिव वे कि एक्सीडेंट हो गया मतलब इट इज बैड। ही थिंक अ पॉजिटिव वे कि एक्सीडेंट हो गया लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं, दैट्स अ पॉजिटिव वे, दैट्स अ गुड थिंग। सो ही टेक आउट अ गुड थिंग। और अगला मेरा जो स्लाइड है शायद उसी के ऊपर है कि फाइंड समथिंग पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आने दो, कोई भी सिचुएशन रहने दो, उसमें से हम क्या पॉजिटिव निकाल सकते हैं। अभी हमारा ये जो वेबिनार है, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। वी आर गोइंग टू अ वेरी बैड कंडीशन, एक फोर्स ब्रेकडाउन है, सभी जगह निगेटिविटी है, हमें घर में बंद करके रखा हुआ है, बाहर नहीं जा सकते, कंपनी बंद है, शायद फाइनेंशियल वी हैव ह्यूज लॉस गोइंग ऑन। आने के बाद जब भी चालू होगा पता नहीं कब चालू होगा। और इस सभी चीज़ों में वी आर टेकन इन अ पॉजिटिव वे कि yes, this is the time we can spend on improving our skills, improving our technical knowledge, improving something good that we are not able to do in regular things. So it is very important that we find something positive in every situation, and this is very good lesson we have to learn, that in every situation we have to take it in a positive way. We have to take it in a very positive way to make the things in our own perspective, that we can able to get something out of it. That is very important. Opportunity, again, there is an instant of opportunity in the middle of every difficulty. A difficult time में we haven't got this platform. अगर शायद रेगुलर कंपनी चल रही थी तो we doesn't got this platform of webinar. हमने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से हम 100 लोग एक साथ आके कुछ बात सुन सकते हैं, कुछ टेक्निकल थिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, 1 घंटा बिता सकते हैं। But this is an opportunity we got because of the difficulty, because of the problem that arises, and we have to take it in a positive way. और मुझे खुशी है कि आप सभी लोगों ने इसे काफ़ी पॉजिटिवली लिया है, and we are enjoying it well. So before we go, I think let us, because only 4 minutes remaining, so I don't want to cut down the thing. So let us stop here for 5 minutes, 2 minutes, and we'll rejoin again.